Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As you all know that we have already started with the written work of The Dancing Men. Now I want you all to open your workbooks, English A workbooks, and you all have to open page number 107 in your book. Page 107. Okay. Page number 107. And this is the MCQs of this chapter. आप सब लोग पेज 107 खोलें और आप लोगों ने इसके अंदर ये वाली चीज एंड मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इन द ब्लैंक्स आल्सो, नॉट ओनली सर्कलिंग और टेकिंग द राइट आंसर, वो तो है लेकिन उसके साथ आपने ब्लैंक के अंदर भी आंसर लिखना है. ठीक है बेटा? अच्छा जी, ओके. All right, the first one is Elsie's father. Elsie's father was a dash. Okay, अब देखें ऑप्शंस आपके पास क्या है. डॉक्टर, क्रिमिनल, फार्मर. एलसी का जो फादर था, मिसेस क्यूबिट्स फादर, he was a criminal. आपको पता है ना कि उनके बारे में क्या कहा जाता था? साहब खावर, आपने अपनी वीडियो ऑन नहीं करनी है. ओके, तो उनके बारे में क्या कहा जाता था कि वो क्राइम बॉस ऑफ शिकागो हैं. सो ही वॉज अ क्रिमिनल. Number 2, Elsie lived in dash before getting married to Mr. Cubitt. Elsie जो है वो कहाँ रहती थी? मिस्टर क्यूबिट से शादी करने से पहले एल्सी कहाँ रहती थी? She lived in America before getting married to Mr. Cubitt. ठीक है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका. वो कहाँ रहती थी? अमेरिका में रहती थी. Number 3, she met Mr. Cubitt in dash. She met Mr. Cubitt in dash, New York, Toronto, London. हो गई थी, मैंने लिख दिया आपका. हाँ, she met Mr. Cubitt in London. ठीक है. Number 4, Mr. Cubitt lived at dash, Ridlingthorpe Manor, Norfolk Manor या Elridge's Farm. ये तीन जगह में से कौन सी जगह मिस्टर क्यूबिट का घर कहाँ था? His house was in Ridlingthorpe Manor. ठीक है, उनके घर का नाम था Ridlingthorpe Manor. Option A is the right answer. Okay, number 5. The trouble started dash after Elsie's marriage to Mr. Cubitt. Trouble, परेशानी, कब शुरू हुई? जब एलसी की शादी मिस्टर क्यूबिट से, एलसी की शादी को 1 साल हो गया. 1 साल तो वो बिल्कुल दे लिव्ड हैप्पीली, मगर उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है. अ मंथ, अ ईयर, 2 years. अ ईयर, 1 साल बाद प्रॉब्लम शुरू हुई. अच्छा भाई, उसके बाद क्या है? नंबर 6, अ लेटर केम फ्रॉम अमेरिका एंड एलसी गॉट डैश टू रीड इट. एक लेटर अमेरिका से आया और एलसी को क्या, वो उसको पढ़ के कैसे हो गई? प्लीज्ड, फ्राइटेंड, सैड. उसको पढ़ के वो बहुत खौफजदा हो गई थी और उसने उसको आग में डाल दिया था, जला दिया था. शी बर्न्ड द लेटर. Number 7, they saw strange figures of dash drawn on their window. Dancing children, dancing women, dancing men. क्या पिक्चर्स बनी हुई थी? Dancing men. C is the right answer, dancing men. Number 8, the man who drew those figures was dash. किसने ड्रॉ की थी वो? हिल्टन क्यूबिट ने, एबेस्लानी ने या मिस्टर मार्टिन ने? इन तीनों में से किसने वो फिगर्स ड्रॉ की थी? एबेस्लानी ने ड्रॉ की थी. Number 9, Mr. Cubitt was a dash man. Evil and wicked, young and good looking, simple and honest. किस तरह के आदमी थे वो? मिस्टर क्यूबिट, ही वॉज अ सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन. बहुत ही सीधे साधे ईमानदार इंसान थे. ओके, नंबर 10 देखें बेटा.
It was dash idea to write messages in the form of dancing men. ये किसका आइडिया था? It was the first time who gave this idea कि messages जो हैं वो dancing men की शक्ल में लिखे जाएं. This is the way to write secret messages. It was Abbess Lanny का आइडिया था, Mr. Cubitt का आइडिया था, ये Elsie's father. एल्सी के फादर का आइडिया ये था और वो आइडिया एबिस लैनी ने यूज किया था. So originally it was Elsie's father's idea to write the messages in the form of dancing men. Number 11, Elsie's father was the crime boss of dash. Tokyo, Chicago, London. Elsie के फादर को क्या कहा जाता था? He was the crime boss of Chicago. B is the right option. Okay. Number 12, dash is the most often used letter in written English. कौन सा letter सबसे ज़्यादा जब हम written English देखते हैं तो कौन सा letter सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? E. ठीक है, A, E या L. So E is the most often used letter in written English. Okay, number 13, according to Mr. Holmes, the figures holding dash are used to divide the messages into word. यानी एक जो मैसेज है उसमें हर दो दो तीन तीन फिगर्स के बाद एक फिगर ने फ्लैग पकड़ा हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फ्लैग्स वाला उन्होंने खुद ही इस बात को मेक आउट कर लिया, गेस कर लिया कि जिन फिगर्स ने फ्लैग्स पकड़े हुए हैं वो क्या है. यहाँ पर एक वर्ड खत्म हो रहा है और दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है. दिस मीन्स एक फिगर जिसने फ्लैग्स होल्ड किया हुआ है उसका मतलब है स्पेस. ठीक है ना, एक वर्ड उसके पास स्पेस तो देनी होती है ना, वो स्पेस देने के लिए क्या किया गया है? एक फिगर बनाया गया है जिसने फ्लैग पकड़ा हुआ है. ठीक है जी. उसके बाद देखें नंबर 14, डैश इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश दैट हैज टू लेटर्स एंड एंड्स इन एम. सिर्फ एक ऐसा वर्ड इंग्लिश में है जिसके जो कि जिसमें के दो अल्फाबेट्स आते हैं और उसका दूसरा अल्फाबेट एम है. आई एम, इम, ये तो कोई वर्ड नहीं होता. ए एम, एम, या यू एम, अम. तो सिर्फ ए एम एम एक ऐसा वर्ड है जो कि दो अल्फाबेट्स हैं सिर्फ, और दूसरा अल्फाबेट जो है वो एम है. ठीक है. अच्छा भाई, इसके बाद क्या है बेटा? नंबर 15, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पुलिस, Abbess Lanny was the most dash man in Chicago. Happy, intelligent, dangerous. न्यूयॉर्क पुलिस में जब होम्स ने अपने फ्रेंड को कॉल की थी और उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि एबिस लैनी एक्चुअली जो है वो शिकागो का सबसे डेंजरस आदमी है. ठीक है. नंबर 16, द लास्ट मैसेज ऑफ डांसिंग मैन वाज. अब लास्ट मैसेज जो डांसिंग मैन के थ्रू आया था वो क्या था? एल्जी प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड. आई टोल्ड यू दाई जो है ये पुरानी इंग्लिश में योर के लिए यूज होता था. इसका मतलब क्या? एल्जी प्रिपेयर टू मीट योर गॉड. या फिर ये था कि एल्सी प्रिपेयर टू मीट योर फादर, या एल्सी प्रिपेयर टू मीट योर हस्बैंड. क्या था? एल्सी प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड. ए इज द राइट ऑप्शन. ये वो मैसेज था जिसको पढ़ते ही होम्स ने फौरन डॉक्टर वॉटसन से ये कहा था कि हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए और हमें कहीं देर ना हो जाए, और फौरन उन्होंने ट्रेन और ये सब कुछ किया था. ठीक है. अच्छा भाई, Abbess Lanny received a message at dash farm. अब एबिस लैनी कहाँ पे स्टे किया हुआ था? उसने किस जगह पे वो ठहरा हुआ था? नॉरफॉक, एलरिजिस, थॉर्प. किस फार्म के ऊपर वो ठहरा था? एलरिजिस फार्म. बी इज द राइट ऑप्शन. Okay, number 18, the message that Abbess Lanny received said. अब एबिस लैनी को जो मैसेज था, रिमेम्बर एक मैसेज होम्स ने भिजवाया था, वो समझा कि एल्सी ने भिजवाया है और वो उस मैसेज को पढ़ के फौरन वहां पे आ गया था. वो मैसेज क्या था? गो अवे एट वंस, कॉल मी एट वंस, या कम हियर एट वंस. तो वो मैसेज क्या लिखा हुआ था? कम हियर एट वंस. सी इज द राइट ऑप्शन. Come here at once. The message that Abbess Lanny received said, "Come here at once." ठीक है. Number 19 क्या है? The message sent to Abbess Lanny was actually written by dash.
किसने लिखा था वो? मिस्टर होम्स, मिस्टर क्यूबिट, मिस्टर वॉटसन। किसने लिखा था वो मैसेज जो स्लैनी को भिजवाया गया था? वो मैसेज असल में मिस्टर होम्स ने लिखा था, जबकि स्लैनी ये समझा कि वो एलसी ने लिखा है, तो वो इस मैसेज को पढ़ के फौरन वहां पर आ गया। Number 20, the American Abbess Lenny was sent to jail for dash 10 years, life 2 years. कितनी देर के लिए उसे जेल भेजा गया? For life, जिंदगी भर के लिए। ठीक है, पूरी लाइफ के लिए उसको जेल भिजवा दिया गया था। अच्छा, एक मर्तबा मैं आप लोगों को दोबारा से ये बता देती हूँ ताकि आपको किसी का कोई भी रह गया हो तो वो इसको कंप्लीट कर ले। अब्दुल राफे बेटे, आप अपनी वीडियो को बंद कर दें और आप जो 2-4 दिनों से जो कुछ कर रहे हैं बेटा, बेहतर ये होगा कि ना करें। ठीक है जी। अब देखें, नंबर 1 का राइट ऑप्शन है बी, क्रिमिनल। नंबर 2 का राइट ऑप्शन है सी, अमेरिका। नंबर 3 का राइट ऑप्शन है सी, लंदन। नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए, रिडलिंग थॉर्प मैनोर। नंबर 5 का आंसर है अ ईयर, बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 6 का आंसर है बी, फ्राइटेंड। नंबर 7 का आंसर है सी, डांसिंग मैन। नंबर 8 का राइट आंसर है एबिस लैनी, बी इज द राइट ऑप्शन, एबिस लैनी। नंबर 9 का राइट ऑप्शन है सी, सिंपल एंड ऑनेस्ट। नंबर 10 का राइट आंसर है सी, एल्सीज फादर। नंबर 11 का राइट आंसर है बी, शिकागो। नंबर 12 का राइट आंसर है बी, ई। ठीक है, ई यानी कि सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो ई होता है। नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ए, फ्लैग्स। नंबर 14 का राइट आंसर है बी, एम। नंबर 15 का राइट आंसर है सी, डेंजरस। नंबर 16 का राइट आंसर है ए, एलसी, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। नंबर 17 का आंसर है एबिस लैनी received a message at dash farm, B, Elbridges. नंबर 18 का राइट आंसर है सी, कम हेयर एट वंस। नंबर 19 का राइट आंसर है ए, मिस्टर होम्स। एंड नंबर 20 का राइट आंसर है बी, लाइफ। क्या सबने ये कंप्लीट कर लिया है? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव कंप्लीटेड द एमसीक्यूज। रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू इफ यू हैव डन इट। Okay, very good, very good. All right. चले बेटे. Now turn to the next page, that is page number 109. पेज नंबर 109 देखें बेटे, इसमें क्या है? इसके अंदर है कि आपके पास सेंटेंसेस दिए हुए, देयर आर 10 सेंटेंसेस दैट आर गिवन टू यू, और इन 10 सेंटेंसेस का ऑर्डर चेंज हुआ है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट ऑर्डर में आपने देखना है कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये। ठीक है, एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस हैं ये वो स्टोरी है जो मिस्टर क्यूबिट होम्स को सुना रहे हैं। नंबर 1 ही नंबर 1 है, लास्ट ईयर आई केम टू लंदन फॉर अ विजिट। नंबर 1, जब वो लंदन आए एक विजिट के लिए, 1 के आगे 1 लिखा आपने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब वो आ गए थे तो एक छोटे से होटल में उन्होंने स्टे किया था। नंबर 5 देखें, आई स्टेड इन अ स्मॉल होटल इन रसल स्क्वायर। इसके आगे नंबर 2 लिखें। एक छोटे होटल में रसल स्क्वायर में उन्होंने स्टे किया था। वहां पर क्या हुआ था कि वो एक अमेरिकन वुमेन एलसी से मिले थे। अब ये कहां पर है? नंबर 9, आई मेट अ यंग अमेरिकन वुमेन कॉल्ड एलसी पैट्रिक। नंबर 9 के आगे 3 लिखें। ओके, अच्छा, उनसे वो मिले थे और उसके बाद क्या हुआ था? दे बिकेम फ्रेंड्स एंड अ फ्यू वीक्स लेटर he proposed her, he asked her to marry him. अब ये कहां पर लिखा हुआ है?
नंबर 4 में लिखा हुआ है अ फ्यू वीक्स लेटर आई आस्क्ड हर टू मैरी मी। नंबर 4 के आगे 4 लिखना है। हो गया। अच्छा, जब उनकी शादी हो गई है तो उसके बाद क्या हुआ है कि जब उन्होंने उनको प्रपोज किया है, मगर उन्होंने ये एलसी शी हैड अ कंडीशन, उन्होंने एक कंडीशन रखी है, और वो क्या है कि वो उनसे कभी भी उनकी पास्ट की लाइफ के बारे में नहीं पूछेंगे। ठीक है। शी सेड, अब नंबर 6 देखो। शी सेड दैट आई मस्ट नेवर आस्क हर अबाउट हर पास्ट लाइफ। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कभी भी उनके पास्ट के बारे में नहीं पूछूंगा। नंबर 6 के आगे 5 लिखें बेटा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उनकी शादी हो गई और शादी के बाद 1 साल तक वो बहुत हैप्पीली दे वर लिविंग हैप्पीली। उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन एक महीना पहले उनको एक लेटर आया। नंबर 3 देखें। अबाउट अ मंथ अगो माई वाइफ रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अमेरिका। नंबर 3 के आगे नंबर 6 लिखे बेटा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, लेटर मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, सिंस देन शी हैज बीन फ्राइटेंड। उस दिन के बाद से वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। नंबर 2 के आगे आपने नंबर 7 लिखना है। हो गया। नंबर 10 देखें। अबाउट अ वीक अगो आई सॉ सम डांसिंग मैन ड्रॉन ऑन द विंडो। एक हफ्ता पहले मैंने विंडो के ऊपर कुछ डांसिंग मैन की ड्राइंग बनी हुई देखी है। नंबर 10 के आगे 8 लिखें। इसके बाद क्या हुआ है, यस्टरडे मॉर्निंग आई फाउंड दिस पीस ऑफ पेपर इन द गार्डन। और कल सुबह मैंने गार्डन के अंदर ये पीस ऑफ पेपर देखा है। नंबर 8 के आगे नंबर 9 लिखें। और उसके बाद व्हेन आई शोड इट टू माय वाइफ शी बिकेम क्वाइट इल। और कल मैंने जब वो ये पेपर उनको अपनी वाइफ को दिखाया तो उस वक्त से उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, इतनी परेशान कि वो बीमार हो गई है। दैट मीन्स नंबर 7 के आगे 10 लिखें। नाउ चेक द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। बॉक्सेस के अंदर देखिए आपने नंबर इसी ऑर्डर से लिखे, 1, 7, 6, 4, 2, 5, 10, 9, 3, 8. Have you all completed it? Raise your hands if you have completed this exercise. All right. अच्छा, एक बात आप लोग और गौर से सुन लें, सेंटेंसेस के ऊपर भी आपने आज की डेट डालनी है, टुडे इज December 14। उसके बाद एमसीक्यूज पे भी आपने आज की डेट डालनी है, टुडे इज December 14। इस एक्सरसाइज पे भी आज की डेट डालें, December 14। सही है। अच्छा, इसी पेज पे नीचे वाली एक्सरसाइज पर भी आज की डेट डालें, December 14। अब इसमें क्या है कि ये आपको इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इन पैराग्राफ के जो स्पेलिंग्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया गया है, उनको अरेंज करके वर्ड बनाना है। ये क्या वर्ड हो सकता है पॉसिबली। ओके, पुट द लेटर ऑफ दीज वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। यानी ये जो लेटर्स हैं इनको आपने राइट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, क्या है द नेक्स्ट। अब ये जो वर्ड है ये कोई वर्ड नहीं है, आई कैन नॉट रीड दिस वर्ड, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है ना। आप देखें ये क्या चीज बन सकती है, तो ये मॉर्निंग बन सकता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वर 10 मोर डांसिंग मैन ऑन द डोर। 3 days later there were some more on a piece of paper। पेपर ब्लैंक में लिख लें, piece of paper in the garden। I decided to wait and try to catch the man who was doing it। I can easily see the garden from my office window, so I sat in there about 2 o'clock at night. My wife asked me to come to bed. Just as she spoke to me, I saw a man moving slowly
towards the house. I took my gun and was going to run out into the garden. My wife threw her arms around me and would not let me go. एक बार फिर से पढ़ देती हूँ ये मैं आपको. The next morning, there were 10 more dancing men on the door. 3 days later, there were some more on a piece of paper in the garden. I decided to wait and try to catch the man who was doing it. I can easily see the garden from my office window. So I sat in there at about 2 o'clock at night. My wife asked me to come to bed. Just as she spoke to me, I saw a man moving slowly towards the house. I took my gun and was going to run out into the garden. My wife threw her arms around me and would not let me go. Have you all completed this exercise? All right, very good. And make sure that you are putting date on all these exercises. All right, students, tomorrow, inshallah, we will do the exercise that is on page number 110 and 111 and 112. ठीक है, ये वाली तीनों एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह हम कल करेंगे. इसके साथ मैं आपको करवाऊंगी कुछ वोकैबुलरी एंड यूजेज की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, पीछे हैं वो आपकी बुक में वो रह गई हैं, तो वो मैं आपको करवाऊंगी. अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो रिटन वर्क मैंने आपको करवाया है, इसमें से ये सारी ऑब्जेक्टिव्स वाली एक्सरसाइजेज आपने होमवर्क की शीट्स पे नहीं करनी है. होमवर्क की शीट्स पे आपने सिर्फ सेंटेंसेस बनाने हैं और क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, और उसके अलावा वोकैबुलरी एंड यूजेज तो मैंने आपको जो एक्सरसाइजेज हैं वो करवा दी हैं. वो वही वाली शीट जो है वो प्रिंट हुई हुई है, उसी में उसको फिल करो और वो वाले पेजेस जो हैं वो होमवर्क के साथ अटैच कर दो. यू डोंट नीड टू राइट इट वंस अगेन. मैंने आपको बार बार ये वाली बात की है कि आपने ये इस तरह से करना है. ठीक है बेटा जी. ऑल राइट, दैट इज ऑल विद द क्लास. अच्छा, एक बात है कि आप लोग ओके